कौन है सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़? आखिर वो होते कौन है हमें वापस काम पर जाने का बोलने वाले? कुछ ऐसे सवाल सुनने को मिले हैं डॉक्टर्स द्वारा 9 सितंबर को हुई सुप्रीम कोर्ट हियरिंग के बाद, जिसने कि देश की टॉप कोर्ट पर एक बड़ा सवाल उठा दिया है कि आखिर उन्होंने डॉक्टर्स को ऐसा क्या कहा है जिसकी वजह से वे सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ से काफी भड़के हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या है असली वजह जिसकी वजह से आरजी करके प्रोटेस्ट रुकते नहीं दिख रहे हैं, और क्यों ये प्रोटेस्ट देखकर आपकी भी रूह कांप जाएगी, इस वीडियो में हम देखेंगे। पहले तो ये समझने की कोशिश करते हैं कि आरजीकर मेडिकल रेप केस के ठीक एक महीने के बाद की हियरिंग में सुप्रीम कोर्ट बेंच ऑफ सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पर्दीवाला और मनोज मिश्रा ने क्या ऑर्डर्स और डायरेक्शंस पास किए हैं। सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने पिछले हियरिंग में भी ये ऑर्डर दिया था कि सारे प्रोटेस्टिंग डॉक्टर्स अपने काम पर लग जाए, क्योंकि ऐसे डॉक्टर्स का प्रोटेस्ट पर जाना पूरे हेल्थ केयर सिस्टम को हिलाकर रख देता है। डॉक्टर्स को सीआईएसएफ द्वारा सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हुए सीजीआई ने हियरिंग के दौरान काफी स्ट्रिक्टली कहा था कि that due security and safety is provided to the doctors, but equally, the young doctors must now return to work and attend to their patients. What is happening on the ground? All that we want to assure the doctors is first return to work. We have said that the district collectors and the superintendents of police will monitor the situation. They shall provide adequate facilities to ensure their safety and security. They must now come back to work. हालांकि सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ की ये बातें प्रोटेस्टिंग डॉक्टर्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई है, जिन्हें कि इस मामले में कोई सिक्योरिटी अभी तक नहीं मिली है। और इस बारे में एक प्रोटेस्टिंग डॉक्टर ने उल्टा सीजीआई पर ही उंगली उठाते हुए क्या कहा है, सुन लेते हैं। First of all, justice has not been provided. We are not sure who is the culprit. And second of all, they have not been able to provide us enough safety. So why is he telling that we should be getting back to work? Who is he to tell this without providing us the basic things we had demanded? मामला हालांकि और बिगड़ चुका है जब सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग के बाद इंडियन मेडिकल एसोसिएशन वेस्ट बंगाल की ब्रांच ने एक प्रेस रिलीज निकालते हुए सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग और सीबीआई दोनों को फटकारा है और कहा है कि वे उनके काम से काफी दुखी है। सिर्फ यही नहीं बल्कि एक फटकार वेस्ट बंगाल स्टेट गवर्नमेंट और सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल के खिलाफ भी लगी है, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में सीजीआई के सामने ये कहा कि डॉक्टर्स की प्रोटेस्ट की वजह से ही अब तक 23 लोगों की जान जा चुकी है। इस मामले में आईएमए वेस्ट बंगाल ब्रांच ने क्या कहा है, एक नजर डाल लेते हैं। After today's Supreme Court hearing, we are deeply disheartened and aggrieved. We observe that there has been no progress in the investigation of the horrific rape and murder of Abhaya, which was taken over by the CBI. From High Court to Supreme Court and from Kolkata Police to CBI, the investigation has been handed around, yet justice remained distant. Moreover, we saw that the state government and its lawyer Kapil Sibbal playing a disgraceful role in trying to stop and malign our movement by any means. They claim that due to the junior doctors' strike, people are dying and patient services are being disrupted. We want to have junior doctors on strike. How can the entire healthcare system be said to be collapsing? This indicates that the government is spreading falsehoods and misleading the Supreme Court. We believe that this is a nefarious government effort to tarnish our movement and mislead the massive public support for it. We condemn Kapil Sibbal and the Health Department, including the Health Minister, for this vile attempt to mislead the Supreme Court. We want to remind both the government and the Supreme Court that junior doctors are not the main pillar of healthcare system. They are merely trainees. If we accept the government statistics as true, and then if the healthcare system collapses due to the junior doctors strike alone, it actually highlights the severe shortage of senior doctors, nurses and healthcare infrastructure in government hospitals. In reality, अगर ऐसा देखा जाए तो इस केस में एक फटकार लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी तीनों को ही पड़ रही है, और वहीं दूसरी तरफ वेस्ट बंगाल स्टेट गवर्नमेंट द्वारा लाए गए न्यू बिल को लेकर भी कंट्रोवर्सी कम नहीं हो रही है। बात ऐसी है कि सेंट्रल लॉ से विपरीत जाने वाले इस लॉ को प्रेसिडेंट की एसेंट मिलनी काफी जरूरी है, और ये कब मिलेगी वक्त ही बता सकता है, क्योंकि द्रौपदी मुर्मू हैज ऑलरेडी 2 डेथ फॉर रेप बिल्स पेंडिंग बिफोर हर, one made by Andhra Pradesh in 2019 after the rape murder of a vet, the other by Maharashtra in 2021 calling for death to those who violate women and kids. ममताज लॉ वुड बी द थर्ड। और इसी के बारे में ऑथर आर प्रसन्नन जी ने स्टेट किया है कि शायद प्रेसिडेंट इस बिल को एसेंट नहीं दे सकती है, वो भी 2 रीजन की वजह से, एंड स्टेटेड 2 things may hold the president back. 1, she may agree with Benjamin Disraeli that what we call public opinion is generally public sentiment. 2, she may think that laws made in haste and anger will be regretted in leisure. अपने एक आर्टिकल में आर प्रसन्नन जी ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात भी उठाई है, और वो ये है कि क्या ये लॉज देश में कोई बदलाव ला भी सकते
सकते हैं या नहीं, जिसके साथ ही उन्होंने इस आइडिया को रिजेक्ट किया है और स्टेट किया है कि लेडीज एंड जेंटलमैन इन लेजिस्लेचर्स, लॉज डोंट मेक द लैंड सेफर, लॉमेन डू। व्हाट वी नीड आर नॉट मोर और बेटर लॉज बट मोर एंड बेटर पुलिसिंग। अब चलिए इस मामले में लॉयर्स की बात पर भी एक नजर डाल लेते हैं कि आखिर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग खत्म होने के बाद अपनी क्या राय रखी है। पहले नजर डालते हैं डॉक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रही सीनियर एडवोकेट गीता लुथरा की बातों पर। क्या रहा पूरा मामला, एक बार बता दें। देखिए, जहाँ तक डॉक्टर्स का मामला है, हम ये कह रहे हैं कि हाँ, जहाँ तक डॉक्टर्स का मामला है, हम कह रहे हैं कि इनको प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए। ये जब पीसफुल प्रोटेस्ट करते हैं आउट ऑफ ड्यूटी आवर्स, नॉट विद इन ड्यूटी आवर्स, तो किसी को भी कोई संकोच नहीं होना चाहिए। दूसरा कि इनके पास कमरे होने चाहिए, फीमेल्स के साथ अलग, मेल्स के साथ अलग, सीसीटीवी होनी चाहिए, आरजी कॉर्न में सीआईएसएफ होनी चाहिए, उसका बंदोबस्त बहुत अच्छा होना चाहिए। कोई भी आके ये कह दे कि मैं सिविक अथॉरिटी से हूँ या मैं पुलिस से, मैं एक सिविक वॉलंटियर हूँ या पुलिस से हूँ, तो या मैं डॉक्टर हूँ, तो उसको खुली छुट्टी हर जगह घूमने की नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये लोग 23 से 32-33 साल के जूनियर रेजिडेंट्स होते हैं। इनको प्रोटेक्शन की आवश्यकता है। ये एक नए शहर में, नई स्टेट में जाके एक नए माहौल में 36 घंटे काम कर रहे हैं। इनको प्रोटेक्शन की आवश्यकता है। मैम, आपने ये कहा कि उनको धमकी भी दी जा रही है। डिफरेंट पश्चिम बंगाल के जो हॉस्पिटल्स हैं, भले ही पॉलिटिकल नहीं है, लेकिन उनको थ्रेट है। इस पर क्या कहा चीफ ने? देखिए, पुलिस, मैंने वो सोलिसिटर जनरल को दे दिया है। मैंने बहुत से हॉस्पिटल, डॉक्टर्स और मेडिकल कॉलेजेस को ये आपत्ति है। कंप्लेंट्स मिदनापुर, बर्दवान, हर जगह की आई हैं। उसमें ये जो थ्रेट कल्चर है, ये अंदर से भी है और बाहर से भी है। इसको सीबीआई को और जो स्पेशल टास्क फोर्स है, इन सबको बहुत ध्यान और गौर से देखना पड़ेगा, क्योंकि जब तक कोई बिना चिंता के काम नहीं करेगा, वो अच्छा काम कैसे करेगा। फिर एक नजर बीजेपी लीडर और सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट गौरव भाटिया की बातों पर भी डाल लेते हैं। और ये प्रश्न जो हमने पूछे हैं, आज मैं इतना ही कहूंगा, निर्ममता बनर्जी झूठी ममता बनर्जी बन गई है। पुलिस कमिश्नर को हटाने का उनका मन नहीं है, उनकी मंशा नहीं है। हमने मांग करी है, ममता बनर्जी जी, पहला तो आप तुरंत इस्तीफा दें। दूसरा, ऐसे पुलिस कमिश्नर को जो कि पश्चिम बंगाल की महिलाओं को सुरक्षित नहीं रख सकता है, आपको इस्तीफा देना चाहिए या उनको बर्खास्त करिए। तीसरी बड़ी बात है, ममता बनर्जी, अगर आपके पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है, हम सब चाहते हैं, पश्चिम बंगाल की जनता चाहती है कि आप अपने फोन का पूरा कॉल रिकॉर्ड, पुलिस कमिश्नर का पूरा कॉल रिकॉर्ड, जो प्रिंसिपल एक्स हटाया गया, उसका पूरा कॉल रिकॉर्ड सार्वजनिक करिए। जनता को पता होना चाहिए कितनी बार आपने बात करी उस सुबह, और जब हमारी बहन के साथ ये दुष्कर्म हो रहा था, क्या आप षड्यंत्र रच रही थी? आपकी चिंता आपकी कुर्सी को लेके है, हमारी चिंता महिला अस्मिता बरकरार रहे, पीड़िता के परिवार को इंसाफ मिले, इसको लेके है। और ये विचारधाराओं की लड़ाई है। जैसा मैंने कहा, रक्षक वर्सेस निर्ममता बनर्जी भक्षक। अब देखना बस यही है कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट 17 सितंबर की हियरिंग में क्या धमाका दे सकती है। टिल देन कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।